السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ کل تک جو کلاس ہمیں پڑھے تھی، اسلام کو اٹھانے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ شرک میں شرک اکبر کے تعلق سے کل ہمیں پڑھے پورا 4 کلاسیں جتنے بھی ہوئے پوری کلاسوں کے اندر شرک اکبر یعنی بڑا شرک، خاص طور سے کل ہمیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قول سنے تھے محبت کے بارے میں۔ محبت صرف اللہ کو کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے محبت۔ اللہ جن چیزوں سے جن باتوں سے اللہ محبت کرتے ہیں ان تمام سے بھی محبت کرنا ہے۔ پھر اللہ کے لیے کسی چیز سے محبت کرنا ہے، کسی سے بھی آپ محبت کر رہے ہیں، خود ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنا، یعنی کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، کوئی بھی عمل ہمارا ہوتا ہے اللہ کے لیے پہلی چیز میں۔ تیسری چیز میں کسی سے دوسرا اتھر پرسن جو بھی بازو ہے، جو بھی دوسرا ساتھی ہے، کوئی بھی چیز دنیا کی چیز ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اس سے بھی ہمارے کو محبت ہونا ہے تو اللہ کے لیے چھوڑنا، تیسری چیز میں۔ چوتھی چیز میں اللہ کے ساتھ محبت کسی کو نہیں کرنا، نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو محبت نہیں کرنا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو محبت نہیں کرنا۔ یہ کل ہمیں سمجھے تھے۔ آج شرک اصغر، شرک الاکبر ہو گیا، شرک اصغر آج انشاءاللہ۔ شرک الاصغر میں 2 باتیں آتی ہیں خاص طور سے، حدیث میں ہم دیکھیں گے، نوٹ کریں گے۔ بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں رہ جاتے ہیں کہ شرک اصغر بولے تو چھوٹا شرک، یہ شرک اصغر خالی ریاکاری میں رہتا، ایسا ہمیں سمجھتے غلط فہمی۔ آج انشاءاللہ ٹوٹل سمجھیں گے کمپلیٹ انشاءاللہ۔ حدیث آتی ہے شرک اصغر میں حلف کے بارے میں۔ حلف اٹھانا بولے تو قسم اٹھانا، سنی، حلف اٹھانا بولے تو قسم اٹھانا۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کیا ہے حدیث؟ جو آدمی غیر اللہ کی قسم کھائے وہ شرک کیا، نہیں، اس میں شرک اصغر معنی لیتے ہیں عام طور پر، مگر شرک اکبر بھی چھپا ہوا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شرک اصغر میں جو قسم اٹھاتے، قسم ہے بول دے نہیں، اماں کی قسم بول دے، ہوتا نا، قرآن کی قسم بول دے فوراً جوش میں آ کے، زیادہ چلنے کا ایج، اماں کی قسم نہیں تو قرآن کی قسم، غیر اللہ کی نہ قسم ہے، قسم صرف اللہ کی کھانا، اللہ کے ناموں کی، اللہ کے صفات کی قسم کھانا، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانا، جائز نہیں اسلام کے اندر۔ اب جو آدمی قسم اٹھا رہا قرآن کی یا کسی اور کی، غیر اللہ کی، تو اس میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک وضاحت کرتے ہیں، فرق بتا رہے ہیں۔ شرک اصغر اس میں چھپا ہوا ہے، شرک اصغر، اور شرک اکبر بھی چھپا ہوا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں قسم کھا رہا ہوں، اللہ نہ کرے ہمیں کئی ڈالے نا، مثال ہے کوئی قسم کھا رہا، زید ایک نام ہے زید قسم کھا رہا، کیا بول کے؟ قرآن کی قسم بول کے کھا رہا۔ قرآن کی تعظیم ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت احترام والی کتاب بنایا، تو تعظیم بولتے ہیں اسے، تعظیم کو جگاتے ہوئے قسم کھا رہا تو یہ شرک اصغر۔ فوراً انہوں نے کیا بولتا، میری ماں کی قسم بول کے بول رہا زید، مثال کے طور پر زید ایسا قسم کھا رہا ہے کہ میری ماں کی قسم بول کے بول رہا ہے، تو ماں کا مقام اس کے پاس بہت زیادہ ہے، عزت ہے ماں کی، تو عزت کی خاطر قسم کھا رہا تو ریاکاری ہے، شرک اصغر۔ آج کا ٹاپک ہمارا ریلیٹو ہے اس سے، شرک اصغر سے۔ اور تعظیم نہیں ہے، قسم کھا رہا، عزت نہیں ہے مگر قسم کھا رہا، کیا بول کے اس کی قسم کھا سکتے ہیں بول کے آدمی تعظیم نہیں کر رہا تو وہ شرک اکبر ہے۔ یہ فرق جلدی سمجھ میں نہیں آتا، غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے۔ تعظیم کے لیے، عزت کے لیے میں ان کی عزت، ان کا وقار کرتے ہوئے اگر قسم کھاؤں تو شرک اصغر میں مبتلا ہو جاتا آدمی۔ تعظیم ہی نہیں ہے، یعنی عزت نہیں ہے، بس کھا سکتی مل کر آدمی بہت سارے لوگوں کی قسم کھاتا نا، رام کے، کشن کے، کسی کے کتاب کے، گیتا کا، بھگوت گیتا، یہ سب کی قسمیں اٹھا دینے آدمی۔ تعظیم اگر نہیں ہے، آج کوٹوں میں یہ ہوتا اکثر، گیتا میں تو پرمانن چیسی چپو بولو نہیں ہوتا نا ایسا کوٹ میں، تو یہ جو چیز ہے تعظیم نہیں ہے مسلمانوں کی، تو اگر قسم کھا کے آدمی بولا بولے تو شرک اکبر میں مبتلا ہو جاتا، بہت بڑا شرک ہے یہ۔ سمجھ میں آ گیا قسم اٹھانا حلف کے بارے میں۔ اور دوسری چیز ریاکاری بولے تو دکھاوا، لوگوں کو دکھا کر عمل کرنا، کام کرنا۔
इसके बारे में, रियाकारी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास हदीस है एक, अख़वफ़ु मा अख़ाफ़ु अलैकुमुश शिरकुल असग़र, मैं तुम्हारे बारे में डरता हूँ कि तुम शिर्क असग़र में मुब्तला हो जाओगे। ये कसम उठाने के बारे में एक दो बातों में समझ में आ जाती है, मगर ये रियाकारी देखो कई किस्में हैं, रियाकारी में कई तरह की बातें आती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको बोल रहे हैं, मुखातब किससे हैं जी? सबसे भी, मगर कौन थे वहाँ करीब? सहाबा। अल्लाह के नबी के करीब कौन थे? सहाबा इकराम। अल्लाह के नबी के जुमले पर गौर करें आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के ऊपर गौर करें कि मैं डरता हूँ सबसे ज़्यादा तुम्हारे से, तुम्हारे में तमाम उम्मत आ जाती पीछे, मगर अल्लाह के नबी खास सहाबा को खिताब कर रहे हैं। देखो गौर करो, सहाबा को खिताब कर रहे हैं। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी के ज़माने में, वही उतरने के ज़माने में ही सहाबा कभी भी पीछे नहीं हटते, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से खिताब कर रहे हैं जो मुनाफिकीन, जो छुपे हुए थे, वो तमाम लोगों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है। और नमाज कैसे पढ़ते थे मुनाफिकीन मालूम? वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नासा, नमाज पढ़ते हैं तो सुस्ती से पढ़ते हैं, एक टांग को हम खुजा लेते, ये कर लेते, सुस्ती, काहिली, कोताही, और नमाज को आते भी हैं तो देर से आते हैं। इसीलिए सहाबा के ज़माने में लेट आते नहीं नमाज़ां को, एक रकात छूट गई, दो रकात छूट गई, ऐसा लेट आने वालों को मुनाफिकीन समझते थे सहाबा इकराम मुनाफिकीन समझते थे। तो बहुत डरना है, और ख़ास तौर से अल्लाह के नबी सहाबा को खिताब करे बोले तो सहाबा वो ज़ात हैं, वो लोग हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी से ऐसी मोहब्बत करने वाले और दीन पर ऐसे चलने वाले। कुरानी आयत अगर कोई आगे पूछे तो देखो सहाबा को देख लो, 10 आयतें सीखना है बोले तो वो सहाबा को देख लो, वो ग्रुप जो भी काम कर रहा है वही कुरान के ऊपर ऐसा अमल करते थे, वो कुरान का अमली जामा बनते थे, वो ऐसे सहाबा को अल्लाह के नबी नसीहत कर रहे हैं, तो हमें कितना अब डरना है, जबकि 1400 साल गुजर गए हैं। तो इसमें रियाकारी के बारे में इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, इसमें भी बहुत अजीब, यानी मुहतात रहना है शिर्क असगर से, यानी रियाकारी से। कैसे? सितारों को पूजा करते हैं, चांद की, सूरज की पूजा करते हैं लोग, वो तमाम पूजा, उनकी इबादतें, उससे भी ज़्यादा शैतान इसमें आसानी रास्ता खोलता है, आसानी से इसमें शैतान क्या करता है, रास्ते हमवार करता है। वो शिर्क कराना मुश्किल है शैतान को, समझ रहे हैं, ये बात है असल। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं वो शिर्क बहुत मुश्किल है, ये जो रियाकारी है बहुत आसान है। क्या करना है इसमें? एक ही अल्लाह को इबादत करना नहीं, अल्लाह के साथ ही इबादत में मगन होते हुए इसमें खींचता है शैतान। क्या करते हैं रियाकारी में? किसी को दिखाना, बस ख्वाहिश दिल में पैदा करना कि किसी और के लिए भी, यानी खुश, शोहरत, दुनिया तलब, इज्जत, एहतराम। यानी नमाज पढ़ने के बाद, नमाज एक मिसाल है ना, नमाज में हमें तो 4 जने देखे पाबंदी कर रहा नमाज की, या नमाज में लंबी कर रहा, या सदका और खैरात कर रहा, तो वाह बड़ा देने वाला है, ऐसी जो बातें हैं नहीं, ख्वाहिश, शोहरत। इंसान आज कैसा हो गया बोले तो फितरत है इंसान की, 4 जने तारीफ करना, जो तारीफ करते हैं उन्होंने दोस्ता, तारीफ नहीं करते नहीं, गलतियाँ बताते नहीं, उन्होंने दोस्ता नहीं, उन्होंने एनिमीज, दुश्मन। गलती बताने वाला उसकी भलाई चाह रहा ना, वो हमारे को समझ में नहीं आता। ये फितरत हमारी बन गई आज। तो रियाकारी ये है कि जो दिखावा लोगों को, उन लोगों को चाह रहा आदमी जो सिर्फ तारीफ करते रहे, मेरी तारीफ सुनना सुनना सुनना, ऐसा आदमी रियाकारी में मुब्तला हो जाता है। शैतान देखो कितना आसान काम है। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या बोलती कि शिर्क की चाल चूंटी की जो चलन है उससे भी ज़्यादा आसान है। चूंटी चलती रहती है ऊपर, मालूम होता हमारे को नहीं मालूम होता, बहुत कम मालूम होता, मालूम ही नहीं होता चूंटी जाती से, उससे भी ज़्यादा खतरा है शिर्क असगर का दाखिल होने का। समझ रहे? शिर्क असगर चूंटी की चलन से भी ज़्यादा आसानी से हमारे ऊपर दाखिल हो जाती है, ये मतलब है। शैतान के बारे में बताया गया है ना, इन्ना शैतान मजरद दम, इन्ना शैतान यजरी मजरद दम, शैतान खून में, रगों में खून जैसे दौड़ता नहीं, वैसे उसके वसवसे दौड़ते हैं, अटैक करते हैं वसवसे उसके। तो शिर्क असगर भी ऐसे ही हमला करते रहता है। एक दुआ है, ये दुआ हर एक लिख लो इंशाअल्लाह रियाकारी में, उस दुआ को याद करना। अब सहाबा इकराम देखो फौरन पूछे, क्या बोलो इस शिर्क से हमें कैसा बचना, फौरन पूछे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ सिखाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी
मैं बोल दूं, निकले थी? हाँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, निकले? अल्लाहुम्मा इन्नी, बोर्ड पे भी लिखता हूँ, अऊज़ु बिका अन उशरिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अना अअलमु इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु अन उशरिका बिका, ठीक है? व अना अअलमु व अना अअलमु अस्तगफिरुका व अना ला अअलम अस्तगफिरुका व अना ला अअलम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका व अना ला अअलम। ठीक है? इस दुआ का तर्जुमा देख लिख लेने के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तगफिरुका व अना ला अअलम। अस्तगफिरुका उसके बाद व अना ला अअलम। وأنا أعلم أستغفرك وأنا أعلم أستغفرك وأنا أعلم أستغفرك وأنا لا أعلم क्या माना बोले तो, ऐ अल्लाह यकीनन मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ अन उशरिका बिका, तेरे साथ शिरिक करने को। ठीक है? अन उशरिका बिका लिख लेने के बाद, नहीं बोले तो लास्ट में लिख लेती हूँ, जगह छोड़ डालो वहाँ तक। देखो बोर्ड देखो, जगह छोड़ डालो, मैं कुछ रख दूँ दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका, जगह छोड़ डालो, बोर्ड देखो। ऐ अल्लाह यकीनन मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ, तुझसे मैं पनाह चाहता हूँ तेरे साथ शिरिक करने को। अन उशरिका बिका, तेरे साथ शिरिक करने को। व अना अअलम, जानते हुए भी, नमाज पढ़ रहे हैं जानते हुए भी, होश में होकर भी आदमी क्या कर रहा, देख रहा, रियाकारी में मुब्तला हो जा रहा। अस्तगफिरुका, अल्लाह मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ, मुझे मुआफ फरमा। व अना ला अअलम, जिसे मैं नहीं जानता, यानी कभी कभी जाने बगैर भी हो जाता आदमी से। तो ऐसा उस शिरक से भी जो भूल के हो गया, भूल चुक कर हो गया, तो ऐसे शिरक से भी अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, जानते हुए भी ना जानते हुए। भैया कभी कभी शैतानी वसवसे में आ जाता है इंसान, कर डालने के बाद अरे मैं भूल गया होता, नहीं कर डालने के बाद भूल हो गई। तो ईमान वाले से भूल ही हो सकती है, जानबूझकर आदमी खताकार नहीं होता, यानी गलती नहीं करता। तो बहरहाल इस दुआ को हमें से हर एक याद करना है। कई बोले तो साहबा इकराम फौरन पूछे शिरक से बचना कैसा, तो ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया। तो देखो सूरह कहफ में भी अल्लाह ताला फरमाती, सूरह कहफ के अंदर 110 आयत नंबर लिख लो, सूरह कहफ आयत नंबर 110, कहफ 18 में सूरह नंबर 18 और 110, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। इस आयत में क्या है कि जो आदमी अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है, 18 और 110 आयत नंबर 18 सूरह नंबर 110 आयत नंबर, जो आदमी अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है, फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही, अल्लाह की मुलाकात के ऊपर उम्मीद रखता है, लिक़ा रब्बिही फलयअमल, उसको चाहिए कि अमल सालेह करे। तो अल्लाह एक है, रब्बुल आलमीन माबूद बरहक अकेला है, तो इबादत भी उस अकेले ही की होनी चाहिए। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक, किसी को शरीक नहीं करना है उसके साथ। गोया माबूद बरहक एक है, तो उस एक अकेले अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करने से
अल्लाह की मुलाकात नहीं हो पाती उससे, अमल सालेह उसके पास नहीं रह जाता है। ये मतलब है इस आयत का, समझ रहे हैं? तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी एक दुआ है, इंशाअल्लाह बाद में लिखेंगे, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा, ऐ अल्लाह मेरे तमाम अमलों को सालिह बना, वजअलहु लिवजहिका खालिसा, ऐ अल्लाह तेरे ही रजामंदी, तेरी अकेले की रजामंदी मेरे अमलों में पैदा फरमा, मैं जो भी काम करता हूँ उस काम को तेरी खुशनुदी वाला बना, वला तजअल लिवजहिका लिअहदिन फीही शैआ, मेरे अमलों में किसी और को भी शरीक ना करना, किसी और को सिवाय तेरी खुशी के किसी और की खुशी शामिल ना फरमा। तो हमारे को इबादत का हुक्म दिया गया, क्या बोलकर सूरह बय्यना की आयत में, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, यानी अल्लाह ताला हुक्म यही दिया कि एक अल्लाह की इबादत करो, समझ रहे? तो इस बय्यना में आयत नंबर 5 है। और देखो एक हदीस में अल्लाह ताला, सही मुस्लिम की हदीस में सूरह बय्यना आयत नंबर 5, वो इसे अल्लाह ताला हुक्म दिया, गोया अकेले अल्लाह की इबादत करना है खालिस करके। खालिस बोले तो एकसू हो जाना, उसके अलावा दूसरा अथर परसेंट नहीं रहना अल्लाह के अलावा इबादत में। हदीस में आता है, सही मुस्लिम की हदीस में, अना अगनी शुरका अन शिरकी फमन आमिल अमलन अशरक फीही माई फीही गैरी फहुवा लिल्लज़ी अशरका व अना मिन्हु बरी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं मुशरिकों के शिर्क से बरी हूँ, मैं उनके अमलों से मैं बरी हूँ। जो भी आदमी मेरे साथ, यानी अल्लाह के साथ, अल्लाह बोल रहा मेरे साथ किसी और को शरीक करता है, उसका अमल मैं उसके साथ दे देता हूँ। क्या मतलब है? हशर के मैदान में जो मुशरिकीन रहते हैं, जो शिरक करे रहते, तमाम भी जो शिरक असगर में मुब्तला हैं, शिरक अकबर में मुब्तला हैं, सब के सब को अल्लाह ताला फरमाएगा, जिनके लिए तुम काम करेंगे उनके पास ले लो बदला। क्या बोलेंगे अल्लाह ताला? जिनके लिए तुम काम करे हो उनके पास बदला ले लो, जिनके लिए शिरक करेंगे, जिनके अल्लाह के साथ शिरक करेंगे उनके पास ही बदला लेने को अल्लाह कहेगा। अब देखिए आखिरी बात है नोट करने की हमारे लिए, शिरक असगर दो तरह के होते हैं। शिरक असगर रियाकारी में, खास तौर से रियाकारी में, दिखावे में दो तरह के शिरक बयान किए जाते हैं। पहले इसमें क्या है बोले तो, रियाकारी में दुनिया तलब करता है आदमी, क्या करता है? दुनिया तलब करता है, या शोहरत के लिए खाली शोहरत चाहता है, इज्जत चाहता है। तो ऐसे शिरक को अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है। दुनिया चाह रहा है और शोहरत चाह रहा है, इज्जत चाह रहा है, ऐसे शिरक को अल्लाह अगर चाहे तो माफ़ करेगा, या अल्लाह चाहे तो अजाब भी उसे दे सकता है, अल्लाह ताला के ऊपर है वो। सूरह निसा सूरह नंबर 4 में ये मुनाफिकीन का शिरक बयान किया गया है। दुनिया तलब कर रहा मुनाफिकीन के ताल्लुक से अल्लाह ने कहा 140 पर 2 आयत नंबर 4:142, रियाकारी में यानी शोहरत चाह रहा है और दुनिया तलब कर रहा, तो ऐसी रियाकारी अल्लाह के ऊपर है वो। ऐसी रियाकारी के ऊपर चाहे तो अल्लाह माफ़ करे या अल्लाह ताला अजाब दे। मगर ये क्या करता है, ये जो दुनिया तलब और शोहरत, ये शिरक अकबर तक खींचता है, ये बात याद रख लेना। नहीं, सबसे बड़ा जो शिरक है शिरक अकबर, दायमी आदमी जहन्नम में पड़ सकता है, उसके भान नहीं है शिरक असगर। ये रियाकारी, शोहरत, दिखावा, ये सब भी यानी करीब है, बिल्कुल करीब। आदमी उसमें मुब्तला हुआ बोले तो शिरक अकबर मुब्तला हो जाता है। ये दरवाज़ा है, खुल गया बोले तो आदमी गिर जा सकता है। इसलिए ये दरवाज़ा हमें बंद करना है दुआओं की पाबंदी से। दूसरा अमल रियाकारी में जो बुनियाद में ही मतलब अमल करने से पहले इसमें लिखे हैं, रियाकारी में शोहरत चाह रहा है आदमी, दिखावा से, हाँ शोहरत या इज्जत चाह रहा है, दुनिया चाह रहा है पहले इसमें। दूसरे इसमें दो तरह हैं, एक आपको शुरू से ही, इब्तिदा से ही बुनियादी तौर पर अमल करने से पहले ही क्या कर रहा, किसी को दिखाना है, किसी की इज्जत चाहना है। जैसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी हदीस है, और एक हदीस जो 3 लोग जहन्नम में जलाए जाएंगे, मालूम है आपको? एक आलिम होगा, एक बहादुर होगा, एक सखी होगा। सखी बोले तो सदका करने वाला, माल लुटाने वाला, और एक आदमी बहादुर, अपनी बहादुरी से अपनी जान को भी घुमा दिया होगा अल्लाह की राह में, और एक आलिम जो अच्छी आवाज़, अच्छा बोलने वाला, अल्लाह के पास अल्लाह की राह में मेहनत करता रहेगा, ऐसे ही अपने आप को कुर्बान किया होगा। 3 लोगों को अल्लाह ताला क्या करेंगे? जहन्नम में भी। पूछेगा अल्लाह ताला सबसे, मैं तेरे को पहलवानी दिया, ताकत दिया, क्या करा तू?
वो बोलेगा अल्लाह मैं तेरे लिए ही मैं वक्फ हो गया, तेरे राह में लड़ता रहा, जिहाद करता रहा, यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह बोलेगा तू झूठा है, तू लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था। लोग तुझे ये कहें कि बड़ा पहलवान है, बड़ा ताकतवर है, तो तुझे मिल गया दुनिया में, अब जा तेरा बदला चक, बोल के अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे तो उनको सर के बल घसीटते हुए, पैरों से जैसे चल रहे हैं, सर के जरिए से उनको घसीटते हुए, चराते हुए उनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ये आलिम भी वैसे क्या करा, तुझे जो अच्छी किरात थी, अच्छी आवाज़ थी तेरी, तो कहेगा अल्लाह मैं पढ़ता रहा, लोगों को पढ़ाता रहा, तो अल्लाह कहेगा झूठा है। लोग तुझे ये कहें कि तू बड़ा अच्छा बोलने वाला, अच्छा आलिम है बोलकर, अच्छा कारी है बोलकर, तो तुझे भी जहन्नम। तो इसमें इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह एक पते की बात बोलते हैं, एक नोट करने की। क्या बोले तो इसमें पहले इसमें बुनियादी तौर पर देखो, शुरू से ही आदमी क्या करे, शुरू से ही दो बातें हैं इसमें। दूसरी बात क्या बोले तो आखिर में, एंड में, ये बात में बोलता हूँ, इसको पहले समझो। शुरू से ही आदमी क्या करे कि रियाकारी को शामिल करे। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते बोले तो आदमी अगर दुनिया यानी देखो पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ मिसाल के तौर पर, उजरत ले तू, मैं मुजरी लेना, मुजरी भी ले तू, शोहरत भी अगर लिया ना, इसमें दाखिल हुआ है जहन्नम। शोहरत नहीं चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए, बस एक ही फ़र्क है, इज्जत होना है, साथ में काम करने की उजरत भी मिलना है, तो दोनों अगर मिलेंगे, इज्जत भी मिल रही और उजरत भी मिल रही, तो जहन्नम चला जाता आदमी। वही आदमी, ये फ़र्क को ज़रा गौर से सुनना, ये फ़र्क अच्छी तरह गौर से सुनना। क्या है, आदमी शुरू से ही काम कर रहा है, जैसे मुजाहिद है, नमाज़ पढ़ाने वाला, नमाज यानी इमाम है, या कोई भी जिहाद करने वाला मुजाहिद है आदमी, तो ये जो लोग हैं उजरत पर भी काम कर रहे हैं। उजरत पर बोले तो मुजरी ले रहे, मुजरी लेते हुए भी काम कर रहे हैं, मगर अल्लाह की अगर रज़ा है तो आदमी बच गया। उजरत भी ले रहा, ऊपर से ख्वाहिश भी है कि लोग मुझे इज्जत दें, एहतराम करें, मेरा रोब चले, मेरी बात चले। अगर ये है अल्लाह की रज़ा नहीं है तो आदमी गया करे जहन्नम, समझ रहे। तो मालूम हुआ कि इखलास हमें होनी है। शुरू से ही आदमी के अंदर उजरत ले रहा आदमी, मगर शुरू से ही क्या कर रहा, दूसरों की इज्जत चाह रहा, दूसरे भी मेरे को देखे, दूसरे भी मेरे को बोले, तो आदमी जहन्नम वासिल हो जाता, रियाकारी और शिरक में मुब्तला हो जाता। समझ में आई बात? समझ में आई तो आगे बढ़ो। समझ में आगे नहीं, सिर्फ फ़र्क क्या है, इखलास है। उजरत ले, अब मिसाल के तौर पर मेरी तरफ से किसी को मैं भेज लो खर्च करने के लिए, उन्होंने क्या कर रहे हैं, उजरत ले रहे, इतने पैसे होना भाई, हज अदा हो जाता, उन्होंने उजरत भी लिए, मगर साथ में अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए कर रहे हो नहीं। अब करने वाला है आदमी, हाजी है, वो एक वाक़या है, एक आदमी फटान दुकान को आया, भाग लेता, दुकान वाला समझा फटान साहब आ रहे हैं, भाग लेते, क्या कि मेरा पूरा खर्चा, खाता था नहीं, पूरा खर्चा उतार डालते, मेरा खाता पूरा निकाल डालते बोल के समझा। उन्हें बेचारा आज खाता निकाल बोला, अब उसे अभी यकीन हुआ, वाह पूरे पैसे आ जाते मेरे को, खर्चा पूरा फिट जाता मेरा। उन्हें निकाल को दिखाते ही वो फटान साहब बोले, कहाँ मेरा नाम कहाँ बोले, कहाँ दिखा हो, तो अभी खुशी हो रही उसे, अब खर्चा पूरा निकालता हो, नाम लिखा होता है, नाम के साथ में हाजी लिखो गया कहते समझ में आया, हाजी लिखो गया, पैसे 1 रुपया दिया नहीं। वैसा नहीं होना है, नाम अल्लाह के लिए कर रहे हैं तो नाम की सोच नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, खल्लास। इसका दूसरा ये नहीं रहना, समझ में आया ये। तो दूसरे अमल में क्या है बोले तो मुख्तसर, दूसरे काम में क्या है, काम में कर दिया, बाद में ख्याल आ रहा शैतान की तरफ से, क्या बोल वो काम करे नहीं, हमें उसकी वजह से शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती, बाद में ख्याल आ रहा। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, सूरह नाज़ियात ना 40 पर एक आयत नंबर, सूरह नंबर 40 आयत नंबर 40 पर। क्या माना है उसका, जो आदमी अल्लाह से डरे, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरे, वो अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और इस बात यानी ख्वाहिशात नफ्स को कुचले। ख्वाहिशात नफ्स क्या है, अमल करते स्टेप पे शोहरत, इज्जत, दुनिया तरफ, ये रियाकारी अगर आ रही बोले तो उसको कुचल के काम करे आदमी तो अल्लाह कबूल कर लेगा। बाद में शैतान के वसवसे आएंगे, बहकावे आएंगे, तो उस वसवसों में भी आदमी को यही डर रहना, काम शुरू से करा ना। दूसरा अमल क्या है, काम करने के बाद रियाकारी का शायबा आ रहा, डाउट हो रहा, क्या बोल के मैं वैसा करा ना, रियाकारी हुई के की,
आदमी को डर हो रहा तो वहाँ कहीं भी हिचकिचाना है। मैं इससे पहले दर्श में समझाया था कि आदमी ये बोल के भी काम छोड़े कि कोई दूसरा देख रहा तो वो भी रियाकारी में मुब्तला होता है। इसीलिए हमारा जो अमल है, हमारा जो नफ्स है, हमारी जो ख्वाहिश है इबादत करने की, वो हमें पूरी करना है बस, समझ रहे हैं। बाद में रियाकारी का अंदेशा आया तो हमें मोहतात होना, बचने की, दूर रहने की। जैसा अमल हमें करें वैसे ही कंटिन्यू होना। बाद में ख्वाहिशें आएंगी, अगर उन ख्वाहिशों में पढ़कर आदमी मुब्तला हुआ तो अल्लाह माफ़ नहीं करता फिर। हाँ वो काम करा ना, हमें मिसाल के तौर पर एहसान जतलाना बोल के आया था, मैं किसी को मदद करा तो मदद मैं अल्लाह के लिए करा, हो गया खलास। बाद में उन्हें दिखने के बाद याद आता तेरे को मदद करा रहे मैं ही बोल, तो वो एहसान कर रहा आदमी, अपने सदक़ात को ज़ाया कर रहा। समझ रहे, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन, मन बोले तो एहसान जताना। मदद किया मैं अल्लाह के लिए, करने के बाद फिर एहसान जताया बोले तो वो मदद अल्लाह ताला मिटा देता है। बहरहाल ये रियाकारी के बारे में तफसीली वजाहत असगर, शिर्क असगर के बारे में अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।